apis, honeybees, bombec, silkworm, laxifer, lac insect. Vectors: Anopheles malaria, Culex filariasis, Culex Japanese encephalitis, Aedes dengue, Aedes chikungunya, Aedes yellow fever, gregarious pest, Locusta locust, living fossil, Limulus king crab, phylum Mollusca, Pila apple snail, Pinctada perloster, Sepia cuttlefish, Loligo squid, Octopus devilfish, Aplysia seer, Dentalium tuskshell, Chitoblurochiton, phylum Echinodermata, Asteria starfish, Echinus sea urchin, Antedon sea lily, Cucumaria sea cucumber, Ophiura brittle star, phylum Hemichordata, Balanoglossus, Saccoglossus, phylum Chordata, subphylum Urochordata, Escidia, Salpa, Doliolum, subphylum Cephalochordata, Branchiostoma, Amphioxus or lancelet, subphylum Vertebrata, class Cyclostomata, Petromyzon lamprey, Magazine hagfish, class Chondrichthyes, Scoliodon dogfish, Pristis sawfish, Carcharodon great white shark, Trigon stingray, Torpedo electric ray, class Osteichthyes, marine fishes, Exocetus flying fish, Hippocampus sea horse, freshwater fishes, Labio rohu, Catla cutla, Clarius magur, aquarium fishes, Abetta fighting fish, Pterophyllum angelfish, class Amphibia, Bufo toad, Rana frog, Hyla tree frog, salamander, Ichthyophis limbless amphibia, class Reptilia, Chilon turtle, Testido tortoise, Chameleon tree lizard, Calotus garden lizard, Crocodilus crocodile, alligator, Hemidactylus ward lizard, poisonous snakes, Naja cobra, Bangaru secret, Vipera viper, class Aves, Corvus crow, Columba pigeon, Psittacula parrot, Strutio ostrich, Pavo peacock, Aptenoids penguin, Neophron vulture, class Mammalia, Oviparous mammal, Ornithorhynchus platypus, Viviparous mammal, Macropus kangaroo, Pteropus flying fox, Camulus camel, Macaca monkey, Ratus rat, Canis dog, Felis cat, Elephas elephant, Equus horse, Delphinus common dolphin, Balanoptera blue whale, Panthera tigris tiger, Panthera leo lion. Thank you. Okay. ठीक आहे. बर ठीक, काय प्रॉब्लेम, समजायचा विषय नाहीये. तू होता का कालच्या लेक्चरला? अभिजित नरवडे, तू कालच्या त्याच्या अगोदरच्या लेक्चरला होता का? ओके ठीक आहे. दोन कमेंट आहेत. एक कमेंट आहे अभिजित नरवडे काहीच समजत नाहीये, दुसरी कमेंट आहे प्रतीक दांडगे खूप मजा आली. तुमचं परसेप्शन काय ना त्याच्यावर तुम्हाला काय बनणार आहे त्या आयुष्यात लक्षात ठेवा, है ना. मी सांगितलं होतं, तुम्ही त्या लेक्चरला होतात का? समजण्याचा विषयच नाहीये हा समजण्याचा विषयच नाहीये. आणि कमेंट वर जरा शिक, थोडस ना विचार करून लिहित जा कमेंट, है ना. मी काही शिकवलंय समजण्याचे बोललोच नाही, मी फक्त तुम्हाला एक्झाम्पल रोज बोलायचं शिकवलेलं आहे. तुम्ही फक्त बोलायचे की मी काय बोलायला लागलोय. आलं लक्षात? ठीक आहे. हा ते तुम्हाला हळूहळू जमायला लागेल. ठीक आहे, हळूहळू जमायला लागेल. माझा एक शब्द आहे तुम्हाला की एक 4-5 दिवसामध्ये आपल्यातलं कोणीतरी तुमच्यातलं, आता मी उद्यापासून रोज त्याला एकदा कळालं की कसं बोलायचं, रोज एक जणाला व्हॉलंटियर बनवून आपण हे सुरुवातीला घेऊया. ठीक आहे. हा चला हळूहळू कळायला लागेल बेटा. हा ठीक आहे, काय दुसरी काय ट्रिक्स नाहीये, हे छान आहे, हेच लक्षात ठेवा. ठीक आहे. लेक्चरच्या सुरुवातीला थोडस पॉझिटिव्ह बोलत चला बेटा, है ना. समजण्याजोगा काही विषयच नव्हता ह्याच्यात, मी फक्त त्याचे जीनस आणि त्याचे कॉमन नेम बोलू लागलो, है ना. तुझं लक्ष कुठं जर 10 ठिकाणी असेल काही समजलं नाही, ठीक आहे, थोडस विचार करून बोलायचं कुठलीही गोष्ट, है ना. चालतंय. आता शिकवतो आणि मग मला सांग की सर मला हे समजलं नाही म्हणून.
नाउ वी आर डीलिंग विद टॉपिक एनिमल किंगडम, वी आर डीलिंग विद टॉपिक एनिमल किंगडम। और हम बात करें दोस्तों, लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट टॉपिक्स टू बी कवर्ड, और आज बात करेंगे दैट इज दोस्तों नंबर 1, हम बात करें टॉपिक एनिमल किंगडम की, टॉपिक एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। नाउ बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम एनिमलिया। व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम एनिमलिया? नंबर 1, व्हाट आर द जनरल characteristics of animals? What are the general characteristics of animals? What are the general characteristics? Number 1, one by one detail बात करेंगे। Number that they are दोस्तों, they are eukaryotes। Now इसका मतलब क्या है? They are eukaryotes means they have eukaryotic cell. Eukaryotes means they have eukaryotic cell means their nucleus is surrounded by nuclear membrane, number 1 point. Or number 2, they have membrane bound cell organelle like mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosome, chloroplast तो नहीं होता है, but Golgi apparatus and all that. So दोस्तों they are eukaryotes मतलब होता है, it means, हमेशा याद रखो, it means eukaryote means it means okay, they have दोस्तों, it means okay, it means they have eukaryotic cell, they have eukaryotic cell। दो टाइप के सेल है दुनिया में, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स इन विच मैं डिटेल में लिखना चाहूंगा सब, इन विच दोस्तों दैट न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कैसे कहते हो दोस्तों उसे, यूकैरियन, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका मतलब होता है दोस्तों यूकैरियोटिक सेल का मतलब है। एंड दे हैव दीज सेल, दे हैव मेम्ब्रेन और दीज सेल्स हैव, उनके जो सेल्स होते हैं दोस्तों, सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। मतलब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मींस जो लाइक सेल ऑर्गेनल्स में छोटे छोटे सेल के पार्ट होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑर्गेनल्स। और जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल लाइक दोस्तों, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल, गोल्गी बॉडीज या फिर गोल्गी अपैरेटस, या फिर दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता होना चाहिए कि ये सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, फॉर एग्जांपल दैट इज अ लाइसोसोम्स। सो दोस्तों दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, नंबर 1। नंबर 2 इसका फीचर दोस्तों, दे आर मल्टी सेलुलर विदाउट एनी एक्सेप्शन, मल्टी सेलुलर विदाउट एक्सेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यूकैरियोटिक को एक्सेप्शन है क्या? नहीं, पर विदाउट एनी एक्सेप्शन दुनिया का कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर नहीं है, दुनिया का कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर। ये याद रखो, ऑल ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर। सो दे आर यूकैरियोटिक, दे आर मल्टीसेलुलर। नाउ 1 2 ये हो गया दोस्तों। विटेकर का ही क्लासिफिकेशन थोड़ा सा यूज करेंगे। नंबर 3 पे पॉइंट है, दैट इज अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल में ऑल ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉपिक, all of them are heterotropic means dependent on all of them, all of animal are heterotropic, they are heterotropic, all of animals are heterotropic। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट बेटा, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। सो अदर, यहाँ पे हेटेरो का मतलब है अदर, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर एंड ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। So all of them are heterotropic without any exception, clear है? Without, अगर इसको भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, दे हैव दोस्तों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की मैं बात करता हूँ। दे हैव एनिमल हैव एंड दे हैव दोस्तों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, होलोजोइक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस दोस्तों दे टेक देयर इज इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब होता है इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। इसका मतलब है इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हमेशा याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनटेक म्हणजे घेणे, इंजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। नाउ क्या बात है यार शंभो, बहुत बढ़िया। और कैसा डाइजेशन है, कैसा डाइजेशन है इसमें, इंटरनल डाइजेशन। ओके, क्या बात है यार वेदांश। ओके, इंटरनल डाइजेशन होता है। दे हैव दोस्तों, ऑल ऑफ एनिमल हैव, दे हैव इंटरनल डाइजेशन। फंगाई में डाइजेशन कैसा है, फंगाई में डाइजेशन होता है एक्सटर्नल, इनमें कैसा डाइजेशन है, इंटरनल डाइजेशन। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइजेशन एनिमल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन नो डाउट हेटेरोट्रॉपिक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और उसमें भी इंटरनल डाइजेशन है, बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। द एंजाइम, मैंने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में ये पढ़ाया था आपको, एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इनसाइड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो ये होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये होगा दोस्तों मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे चलते हैं, हम बात करें किंगडम एनिमलिया की। आगे चलते पॉइंट नंबर 4 कवर करेंगे दोस्तों। ये जो एनिमल होते हैं इनमें ओके सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल जो है सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। नंबर 1 सेल वॉल इज नॉट फीचर ऑफ एनिमल। नंबर 5 दैट इज दोस्तों जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल नाम का एक ना सेल ऑर्गेनल है, हमेशा याद रखो। ये जो लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल इन सेल इज एब्सेंट, लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल इन सेल इज एब्सेंट। बट एक छोटा वैक्यूल हो सकता है, बट स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लोअर एनिमल। बट दोस्तों बट स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लोअर एनिमल, आर प्रेजेंट इन लोअर एनिमल में हो सकते हैं, छोटे छोटे प्रेजेंट इन लोअर एनिमल। नाउ ये वैक्यूल्स क्या है, लोअर एनिमल। तो दोस्तों ये जो वैक्यूल्स है एक सेल ऑर्गेनल है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर स्टोर्ड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर होते हैं सेल के। नाउ और क्या चीज एब्सेंट है, नंबर 6 दोस्तों दैट इज प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल एब्सेंट, ये भी एब्सेंट है। प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल। तो होता क्या है दोस्तों, फिर एनिमल में है क्या, दैट इज दोस्तों सेल हैव सेंट्रियोल्स, सेल हैव सेंट्रियोल्स, जो एनिमल प्लांट सेल में नहीं, सेंट्रियोल्स which help in सेल डिवीजन, which help in सेल डिवीजन में मदद करते हैं ये सेंट्रियोल। बस इतना ही याद रखो, इसका बाद में हम डिटेल में जान लेंगे। सेंट्रियोल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। ये तीनों के तीनों सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द फीचर ऑफ प्लांट सेल। ये किसके फीचर्स हैं, एक्चुअली दीज आर द फीचर्स ऑफ, ये सभी फीचर्स किसके दोस्तों, दीज आर फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ प्लांट सेल, जो कि एनिमल सेल में नहीं होते। याद रखो ये 3 फीचर्स, दीज आर फीचर्स ऑफ प्लांट सेल ओके, बट सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये प्लांट सेल में नहीं होता है। 7 नंबर 8 जो ग्रोथ होगी दोस्तों, जो ग्रोथ है, ग्रोथ जो होती है एनिमल में वो डेफिनेट टाइप की ग्रोथ होती है, डेफिनेट ग्रोथ होती है, हमेशा याद रखो। अप टू ओके इन एनिमल ग्रोथ इज डेफिनेट मीन्स इसका मतलब क्या है, आफ्टर म्हणजे अप टू सर्टेन एज ग्रोथ ऑकर, अप टू सर्टेन एज, आफ्टर दॅट इट बिकम डेफिनेट। आता माझी याच्या पुढे हाईट नाही वाढणार कधीच ओके, पर प्लांट में ग्रोथ कैसी है, इनडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है। बट एनिमल में ग्रोथ कैसी होती है दोस्तों, हमेशा याद रखो एनिमल में ग्रोथ कैसी है, डेफिनेट ग्रोथ होती है। इसके ऊपर एमसीक्यू है, एनिमल में जो ग्रोथ है वो डेफिनेट होती है, इसके ऊपर एमसीक्यू है, याद रखो ओके। डेफिनेट का मतलब है दोस्तों दैट इज ग्रोथ इज सीन
growth is seen only up to certain age. ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती। फिर ये ऐसी इधर उधर की ग्रोथ होती रहती है, बट हाइट नहीं बढ़ती है। पर हाइट बढ़त नाही येतं का? प्लांट में ग्रोथ कैसे कंटिन्यूअस है, एनिमल में ग्रोथ डेफिनेटिव है। नाउ ओके, नंबर 9, फिर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुला इज वेरी क्विक। प्लांट एनिमल सेल में क्या है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस म्हणजे एनी चेंज इन द एनवायरमेंट। रिस्पॉन्स इंटरनल और एक्सटर्नल, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुला इज वेरी क्विक, फास्ट होता है। फास्ट मैं बताता हूँ ना आपको कि मान लो किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को मैंने टच किया तो आई सडनली विथड्रॉ माय हैंड, तो ये जो रिस्पॉन्स है ये बहुत ही फास्ट हुई दोस्तों, ये बहुत ही क्विक है, याद रखो ये बहुत ही क्विक होता है। ओके नाउ नंबर 10, that is presence of nervous tissue। ये एनिमल का फीचर है, प्रेजेंस ऑफ नर्वस टिश्यू एक्सेप्ट एक फाइलम है, एक्सेप्ट दैट इज पोरीफेरा। सो सभी एनिमल में नर्वस टिश्यू होते हैं एक्सेप्ट पोरीफेरा छोड़ के। पोरीफेरा में नर्वस टिश्यू एब्सेंट है। सो फर्स्ट टाइम नर्वस टिश्यू आर डेवलप्ड इन सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया, तो इसमें नर्वस टिश्यू एब्सेंट है। नंबर 11 पॉइंट दोस्तों, दे शो लोकोमोशन। दे हैव ओके locomotion means they have locomotion means it is an ability to move from one place to another place। locomotion का मतलब क्या है? they have locomotion except, यहाँ पे भी exception है दोस्तों, they have locomotion means except पोरीफेरा में सभी sessile होते हैं, they cannot move from one place to another place। now locomotion means motion which is responsible for change in location, उसे कहते हैं locomotion। it is an ability of an organism to move from one place to another, to move from one place to another, इसे कहते हैं दोस्तों लोकोमोशन। ये पोरीफेरा में नहीं है, even the nervous system is absent in porifera। so these are the some features, these are the features of kingdom Animalia। number number 12, that is mode of reproduction की बात करेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे दोस्तों। सो बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट। तो बोथ यहाँ पे दोनों है दोस्तों, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सीन, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन किंगडम एनिमलिया। नाउ जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दोस्तों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन लोअर एनिमल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम में होता है इन हायर एनिमल। अभी लास्ट पॉइंट है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करेंगे, नंबर 13वां पॉइंट। ओके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू विटेकर, तो दीज आर इवोल्यूशनरी रिलेशन, दीज आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑन प्लैनेट अर्थ। ये दुनिया के सबसे मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और प्लैनेट अर्थ है। दीज आर मोस्ट एडवांस्ड एनिमल, आर मोस्ट एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, दैट इज एनिमल। सो दीज आर सम जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया। क्या क्या जनरल फीचर्स है दोस्तों, पहले से देख लेंगे। व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया? व्हाट आर द जनरल फीचर्स किंगडम एनिमलिया? बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम एनिमलिया, दे आर यूकैरियोट मींस दे हैव दोस्तों यूकैरियोटिक सेल इन व्हिच nucleus is surrounded by nuclear membrane। so nucleus is surrounded by nuclear membrane का इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। इसका मतलब कैसा न्यूक्लियस है? ट्रू न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, याद रखो। फिर मेम्ब्रेन हैव
जो सेल दोस्तों, सेल जो है सेल हैव membrane bound cell organelles like mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum and lysozyme. They are multicellular without any exception. और मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोस्तों हेटेरोट्रॉपिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रॉपिक मींस दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड सप्लाई एंड होलोजोइक मींस इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक, क्या है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस? इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दोस्तों लाइक याद रखो पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड नहीं पॉलीसैकेराइड लेंगे। फिर दोस्तों प्रोटीन्स एंड लिपिड्स और दे हैव इंटरनल डाइजेशन। उनके अंदर डाइजेशन कैसा है? इंटरनल डाइजेशन है, हमेशा याद रखो कैसा डाइजेशन है? इंटरनल डाइजेशन है, याद रखो। ओके, दे हैव इंटरनल डाइजेशन। ठीक है, चलो पुढे जाऊया। सेल वॉल इज अब्सेंट। सेल वॉल अब्सेंट होती है, उनके सेल को सेल वॉल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसीलिए उनकी जो सेल है हमेशा रप्चर हो जाएगी या फिर कोलैप्स होती है। प्लांट की सेल रप्चर या कोलैप्स नहीं होती है, एनिमल की होती है, क्योंकि सेल वॉल नहीं है। लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल इन सेल इज अब्सेंट बट स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। स्मॉल वैक्यूल होते हैं, बट ये जो फीचर है दोस्तों, ये 3 फीचर खास करके, these are the feature of plant cell, large and central vacuole, plastid like chloroplast are absent, ते फीचर ऑफ प्लांट सेल आहे। म्हणजे मला म्हणायचं की absent म्हणजे ते एनिमल सेल मध्ये absent आहेत, बट ऍक्च्युअली these are the feature of plant cell. ओके, plastid like chloroplast are absent, ये नहीं है, आई एम सो सॉरी, ये छोड़ के। सो सेल हैव सेंट्रियोल व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रियोल दोस्तों किस में मदद करता है? सेंट्रियोल हेल्प इन डिवीजन ऑफ सेल, एक्चुअली इट हेल्प इन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। ग्रोथ डेफिनेटिव है, ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज वेरी क्विक। प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट पोरिफेरा, प्रेजेंस ऑफ लोकोमोशन एक्सेप्ट पोरिफेरा। Ability of organism to move from one place to another place, that is called locomotion. Mode of reproduction, both asexual and sexual mode of reproduction are present, and evolutionary relationship, they are most advanced and complex organism on planet Earth. आगे बढ़ते हैं. Now, what are the 6 bases that are used for classification? What are the 6 bases of classification? 6 bases of classification के बारे में बात करेंगे. 6 bases of animal classification. 6 bases of animal क्लासिफिकेशन, ये सभी हमें पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी सभी इन्हीं 6 बेसिस के ऊपर ही सभी एमसीक्यू है। व्हाट आर द 6 बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, हमें ये पता होने चाहिए, इसके ऊपर ही सब है। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आगे बढ़ता हूं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक। नंबर 2 दोस्तों दैट इज सिमेट्री या फिर बॉडी सिमेट्री कहते हैं, सिमेट्री या फिर बॉडी सिमेट्री। नंबर 3 दैट इज दोस्तों डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक, ये ऐसे कैसे याद रहना है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीक्वेंस भी नहीं भूलना है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नंबर 4 दैट इज सीलोम। सीलोम क्या है बता दूंगा, फिर बाद में है दोस्तों सेगमेंटेशन, और लास्ट में आएगा दैट इज नोटोकॉर्ड। 6 नंबर का जो है वो है नोटोकॉर्ड। सो दीज आर द 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बाय यूजिंग दीज 6 क्राइटेरिया वी क्लासिफाई एनिमल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द LOO, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, होलोझाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नाही कळलं, शिकवलेलं बेटा. होलोझाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि होल मीन्स आपण म्हणतो ना होल वावर इज आवर, हा एक शब्द आहे बघा. होल म्हणजे कंप्लीट, पूरा का पूरा मेरा है. होल वावर इज आवर, होल वावर इज आवर. सो होलोझाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स वो इंटैक्ट फूड लेते हैं, इंटैक्ट जो ब्रेक नहीं हुआ है और उसको अंदर बॉडी में जाके वो ब्रेक होने वाला है, इसे कहते हैं होलोझाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, नहीं समझा, मैं समझाता हूँ. इसको नहीं समझा मतलब बहुत सारे लोगों को भी प्रॉब्लम आ सकता है शायद. चलो मैं आपको समझाता हूँ होलोझाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है. मान लो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होलोझाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर आगे बढ़ते हैं.
मान लो ये कोई तो भी पर्सन है जिसको खाना खाना है, ओके, ये कोई तो भी पर्सन है जिसको खाना खाना है ना। भूख लगी है इसको, क्या लगी है? भूख। इसके सामने अलग अलग ऑप्शन है दोस्तों। ये है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दीज आर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकाल रहा हूं मैं, एक एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकाल रहा हूं। दीज आर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कि मोनोसैकेराइड है, जो सिंपल शुगर है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज याद रखो ना। यहाँ पे दोस्तों है प्रोटीन्स, ये क्या है? प्रोटीन्स है, सॉरी अमाइनो एसिड। दीज आर द अमाइनो एसिड्स, 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 याद रखो। और मान लो यहाँ पे दोस्तों लिपिड्स, ये है ग्लिसरॉल, यह है ग्लिसरॉल, 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 और हर एक ग्लिसरॉल के पास 3 फैटी एसिड है। हर एक ग्लिसरॉल के पास 3 फैटी एसिड है। कुछ ऐसा सिनारियो, इसके पास 3 फैटी एसिड, इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3 फैटी एसिड है। फैटी एसिड 3 है। ये हो गया नाउ ट्राइग्लिसराइड। नाउ प्लीज पे अटेंशन है, कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा अलग वे है मेरा समझाने का, क्योंकि ये सभी को समझ में नहीं आता है। नाउ ये है दोस्तों लिपिड्स, ये क्या हो गया? लिपिड्स। नाउ यहाँ पे क्या है? दीज आर नाउ, ये बन गए दोस्तों अमीनो एसिड कनेक्ट हो रहे तो ये बन गए प्रोटीन। अमीनो एसिड एक दूसरे के कनेक्ट हो गए तो ये बन गए प्रोटीन। ये कॉम्प्लेक्स हो गया अभी। नाउ दोस्तों अभी मान लो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे तो नाउ अभी ये बिकम स्टार्च। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्ट है तो नाउ इट इज बिकम स्टार्च। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हम ग्लूकोज थोड़ी खाते हैं, हम खाते हैं चपाती, हम खाते हैं राइस। राइस में ग्लूकोज थोड़ी है दोस्तों। राइस में ग्लूकोज है क्या? नहीं। हम नॉनवेज खाते हैं तो उसमें अमीनो एसिड थोड़ी, उसमें है प्रोटीन। तो ये स्टार्च जो है हम खाते हैं स्टार्च, ये स्टार्च है दोस्तों पॉलीसैकेराइड। ये स्टार्च पॉलीसैकेराइड, इसका इंटैक्ट स्वरूप जो है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड। ये है प्रोटीन, ये पॉलीमर है, बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटा थोड़ी है। ये है लिपिड, ये भी बड़ा मॉलिक्यूल है, ये बड़ा मॉलिक्यूल। हम ऐसे थोड़ी, हम अमीनो एसिड खा रहे हैं क्या? नहीं। हम एक फैटी एसिड खा रहे हैं क्या? यस और नो? नहीं। हम सिर्फ ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल खा रहे हैं क्या? नहीं। भाकरी खातो, राइस खातो, दाल खातो। दाल म्हणजे क्या है? दाल में क्या है? प्रोटीन। दाल में क्या है? दाल में है प्रोटीन। दाल में काला है, लोग बोलेंगे दाल में काला है, नहीं रे बाबा, दाल में है प्रोटीन। ओके। राइस में क्या है? राइस में है स्टार्च। ओके। ऑयल जो खा रहे हैं उसमें क्या है? लिपिड। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल हम खाते हैं, इंटैक्ट मॉलिक्यूल खाते हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूल खाते हैं। ऐसा ये पूरा हो गया दोस्तों, ये पूरा मॉलिक्यूल हो गया होल, बड़ा सगळं द्या, होल पाठवा। होल म्हणजे सब कुछ कंप्लीट आना, इसलिए इसे कहा जाता है होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम ग्लूकोज खा रहे या फिर सिर्फ अमीनो एसिड खा रहे तो दैट विल बी द एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन फंगाई। नाउ यहाँ पे क्या है दोस्तों? होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हम ये सभी खाते हैं, हम ये सभी खाते हैं, इसीलिए ये पॉलीसैकेराइड खाते हैं। ओके, हम पॉलीसैकेराइड खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, हम लिपिड खाते हैं, और इसे कहते हैं दोस्तों होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट इज टर्म्ड एज अ होलो, कंप्लीट फूड खाते हैं, होलोजाइक न्यूट्रिशन बोला जाता है इसको। और फिर ये हमारे बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। अगर इसको तोड़ तोड़ के खा रहे, फंगाई जो करते, फंगाई क्या करते? और बाहरी एंजाइम रिलीज करते हैं। फंगाई बाहरी एंजाइम रिलीज करते हैं और बाहरी स्टार्च से बनता है, ग्लूकोज प्रोटीन से बनते हैं, अमीनो एसिड और लिपिड से बनता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और फिर वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो दैट इज एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये हो गया होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आर यू गेटिंग मी और नॉट? जिनको समझ में नहीं आया था, इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए याद रखो, कॉम्प्लेक्स मींस ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल। होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस इनटेक, इनटेक म्हणजे जेवणे घेणे, इनटेक ऑफ कैसा फूड? कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस,
लाइक प्रोटीन एंड ऑल दैट, उसे कहते हैं होलोजाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्लियर है? ओके 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 डन। ओके, मुझे पता है बेटा उन्मेष, ये कॉन्सेप्ट तुझे MBBS बनाएगा बेटा। ओके आगे बढ़ते हैं। तो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन ऑलवेज। बात करेंगे दोस्तों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करते हैं। लेट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले मेरा एक तरीका है ये टॉपिक पढ़ाने का। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। 4 लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। मैं पहले फटाफट एग्जाम्पल लिखता हूं और फिर डिटेल में जाता हूं। नंबर 1 दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। सेलुलर लेवल एक होता है। सेलुलर लेवल किसमें होता है? सेलुलर लेवल मींस सिर्फ सेल ही है। दैट सेलुलर लेवल इज प्रेजेंट इन दोस्तों, दैट सेलुलर लेवल हमेशा याद रखो, इट इज प्रेजेंट इन पोरीफेरा। जो पोरीफेरा है उसमें सिर्फ सेल होता है, एग्रीगेट्स ऑफ सेल होता है, बाकी कुछ नहीं। टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम आर एब्सेंट इन देम। फिर दोस्तों जो दूसरा लेवल है दैट इज, जो दूसरा लेवल होगा वो होगा टिश्यू लेवल। सेलुलर लेवल के बाद कौन सा लेवल है? दैट इज नंबर 2 पे होता है दोस्तों टिश्यू लेवल। मींस यहाँ पे टिश्यू बनते हैं। सेल टिश्यू लेवल जो है दोस्तों, टिश्यू लेवल में याद रखो टिश्यू लेवल के 3 एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है दोस्तों सिलेंट्रेटा, ओके, 2 एग्जांपल है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, इनमें टिश्यू लेवल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा, इनमें होगा दोस्तों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मींस इनमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर एब्सेंट। नंबर 3 मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। नंबर 3 पे दोस्तों दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मींस इनमें टिश्यू आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन, एंड दिस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन दोस्तों दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थिस। सिर्फ प्लैटीहेल्मिन्थिस में ऑर्गन है। टिश्यू होंगे, सेल होंगे, पर मेनी टिश्यू कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन, सो प्लैटीहेल्मिन्थस, इसे कहते हैं फ्लैट वर्म। और इससे भी मेनी ऑर्गन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म दोस्तों ऑर्गन सिस्टम। तो ये किसमें है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसमें है दोस्तों? इट इज प्रेजेंट इन एसके हेल्मिन्थिस ऑनवर्ड। इट इज प्रेजेंट इन एसके हेल्मिन्थिस ऑनवर्ड। एसके हेल्मिन्थिस ऑनवर्ड, ये होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एसके हेल्मिन्थिस ऑनवर्ड ये होगा दोस्तों। ओके, पीसीसी पामे हाई कोर्ट पता है ना आपको? पीसीसी पामे हाई कोर्ट मतलब पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ओके, एसके हेल्मिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, पीसीसी पामे हाई कोर्ट। तो हम शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों? दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से वन बाय वन बात करेंगे। एक आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस विद द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। नाउ नंबर 1 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, फिर धीरे धीरे बात करेंगे। नंबर 1 दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है? चलो आपको पता है ये क्या होता है? चलो एक स्लाइड यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। चलो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बताता हूँ। एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको समझाता हूँ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने शायद कभी देखे भी नहीं होंगे लाइफ में आपके। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कभी देखे नहीं होंगे। नाउ प्लीज पे अटेंशन, मैं आपको दिखाता हूँ। सेल के पहले क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? सेल के पहले क्या होगा? किसको पता है? सेल तो बेसिक है, उससे भी पहले एक लेवल होता है। कोई मुझे बता सकता है क्या? एम्ब्रियो? गलत 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 गलत। कौन बोला? प्रोटीन कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है पॉलीसेकेराइड, कोई बोल रहा है बायोमोलिक्यूल। बहुत बढ़िया मरुणमयी, पर उसका एक नाम है, कोई बोल रहा है नथिंग, उसका एक नाम है। सेल के नाम है उसका एक प्रोटोप्लाज्मिक। नहीं, सेल के पहले क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? बायोमोलिक्यूल तो है, पर बायोमोलिक्यूल के भी 2 टाइप है तुषार बेटा। सेल के पहले क्या है? क्या बात है यार अजय, हे आहे फाउंडेशनचा फायदा. मला वाटतं मी त्याला शिकवलं होतं फाउंडेशन मध्ये. बहुत ही बढ़िया बेटा अजय. ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करते दोस्तों. पहले होते मैक्रोमोलिक्यूल. दुनिया में 4 ही मैक्रोमोलिक्यूल है दुनिया में.
4 ही मैक्रोमोलिक्यूल है, जो है पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड एंड डीएनए। तो दोस्तों याद रखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन अर्थ बड़ी बात करेंगे, ऑन अर्थ बड़ी बात करेंगे, बड़ी बात करेंगे। और आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द किंगडम एनिमल विद द टॉपिक इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस। शायद आपने ये देखा होगा, शायद आपने सुना भी होगा। नंबर 1 होते दोस्तों मैक्रोमोलिक्यूल। यहां से लिखूं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां लिखता हूं। नंबर 1 पे आएंगे दोस्तों मैक्रोमोलिक्यूल। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है फिर वो कंबाइन होके बनता है सेल। मैक्रोमोलिक्यूल कंबाइन होके बनता है दोस्तों सेल। मेनी सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दोस्तों टिश्यू। मेनी टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दोस्तों दैट इज ऑर्गन। मेनी ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दोस्तों दैट इज ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑर्गन सिस्टम। Many organ system combine together to form दोस्तों organism. Now many organism or organism of same species known as दोस्तों population. Population याद रखो। Now population of 2 to 3 different population is called दोस्तों community. Community. Number 9, ओके, 2-4 कम्युनिटी मिला के और उसमें अगर अबायोटिक फैक्टर डाल दिया दोस्तों तो बनता है इकोसिस्टम। क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। 2-4 इकोसिस्टम विथ नेचुरल बाउंड्रीज दोस्तों, 2-4 इकोसिस्टम अगर एक जगह पे आ गए तो बनता है लैंडस्केप। शायद आपने ये नाम भी नहीं सुना होगा, बनता है लैंडस्केप। और मेनी लैंडस्केप ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म दोस्तों बायोम्स। बायोम्स नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, बायोम्स। बायोम्स ओके, बायोमेस कोई बोलेगा इसे, बायोम से एक ही लिखता हूँ, बायोम, बायोम ओके। और ये बहुत सारे बायोम एक जगह पे आते हैं दोस्तों और बनता है बायोस्फीयर। ये कहीं तो भी वॉल ऑफ बायोलॉजी के ऊपर लगा दो और पढ़ते जाओ, ट्राई टू रिमेम्बर दिस। ये मैक्रोमोलिक्यूल है ओके, अणु और रेणु। अणु मीन्स एटम, रेणू ओके। तुकाराम महाराजांनी सांगितलेलं बघा काहीतरी, म्हणजे विठू माझा अणु रेणू मध्ये सामावलेला असं काहीतरी अभंग आहे। अणु म्हणजे एटम, रेणु म्हणजे मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल है मैक्रोमॉलिक्यूल। तो यूनिवर्स किससे बना है? अणु रेणु से। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कंबाइन होते बनता है सेल, सेल कंबाइन होकर बनता है टिश्यू, टिश्यू कंबाइन बनता है ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ओके, सिस्टम ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर बनेगा ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर म्हणजे पूरी अपनी पृथ्वी अर्थ, उसमें 3 स्फीयर होते हैं, एयर वाला एटमॉस्फेयर, वाटर वाला हाइड्रोस्फीयर और सॉइल वाला लिथोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के 3 कंपोनेंट है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। और इनमें रहने वाले सभी जीव जंतु, सभी ऑर्गेनिज्म, इन सभी को मिला के बोला जाता है बायोस्फीयर। समझे? इन्हीं को मिला के बोला जाता है बायोस्फीयर ओके। मैंने क्या लिखा है? मैक्रो, मैंने माइक्रो लिखा है क्या? ये गलत है फिर, थैंक यू सो मच फॉर करेक्शन। ये मैक्रो है भैया, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो नहीं, मैक्रो है। आई एम सो सॉरी, मैक और मिक। ये क्लियर हो गया? ये हो गया दोस्तों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लियर है? ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बात कर रहे दोस्तों हम, अभी बात कर रहे दोस्तों, तो नंबर 1 दैट इज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय सेलुलर लेवल? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल में 4 ही लेवल है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है? सेल्स आर प्रेजेंट ओके, दीज आर द एनिमल्स ओके। यहाँ पे सिर्फ सेल्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है? सिर्फ सेल है, टिश्यू, ऑर्गन ये सब कुछ एब्सेंट है यहाँ पे। जहाँ पे जस्ट एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स है। क्या है? एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स। ओके यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या है? नंबर 1 पे बात करेंगे, दैट इज नंबर 1 पॉइंट ये है कि नंबर 1 पॉइंट ये है दोस्तों, दैट इज यहाँ पे जो है सेल्स आर, सेल्स, ओनली सेल्स आर प्रेजेंट। सपोज ओनली सेल्स आर प्रेजेंट, ओनली सेल्स आर प्रेजेंट, ओनली सेल्स आर प्रेजेंट, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, ये ऐसे एनिमल है जिनमें टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट। टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ये जो है कुछ भी नहीं होगा इसमें, आर एब्सेंट, फक्त सेल्स।
ओनली सेल्स आर प्रेजेंट, एक नहीं तो बहुत सारे, ओके, ओनली सेल्स आर प्रेजेंट। नंबर 3 दोस्तों, नाउ सेल्स आर, ये जो सेल्स होते दे आर अरेंज्ड एज अ लूज एग्रीगेट्स, लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स, सेल्स आर अरेंज्ड दोस्तों, अरेंज्ड लूजली, दे आर अरेंज्ड लूजली टू फॉर्म दोस्तों लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल, टू फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल, किसमें, एग्रीगेट्स में से एकत्र नहीं, एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स, ये किस में होते हैं दोस्तों, जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कोई सेल जो है, मान लो कोई सेल है, कोई डाइजेशन परफॉर्म करेंगे, कोई सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, कोई सेल एक्सक्रेशन में हेल्प करेंगे, कोई सेल दोस्तों और जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी के, मेन बेसिक फंक्शन वो परफॉर्म करने में लग जाते हैं, ओके, कोई एक्सक्रेशन में, कोई रेस्पिरेशन में, कोई डाइजेशन में, ऐसा है। सो सेल्स आर अरेंज्ड लूजली टू फॉर्म दोस्तों लूज एग्रीगेट ऑफ सेल। नाउ क्या कॉन्सेप्ट है, डिवीजन ऑफ लेबर सुना है आपने, तो यहाँ पे दोस्तों मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट, मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर, मैं समझाता हूं आपको डिवीजन ऑफ लेबर क्या कॉन्सेप्ट होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम वाटून देने, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम वाटून देने, समझून सांगतो आता, काम वाटून देणे काय, सपोज दोस्तों concept of division of labor, it is division of labor is present in multicellular organism, it is the feature of multicellular organism, but मान लो कि division of labor means it is an ability of in a simple language different cell perform different function और different organ perform different function। हमारे बॉडी में division of labor है, हार्ट का क्या फंक्शन है, पंपिंग ऑफ ब्लड, लंग्स का क्या फंक्शन है, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किडनी का क्या फंक्शन है, एक्सक्रीशन, बोन और स्केलेटल मसल का मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ब्रेन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओके, लिवर का मेटाबॉलिज्म, ओके, अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन है। तो ये डिवीजन किया है, बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें यही सब फंक्शन एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है, ये होता है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर बिलकुल नहीं है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, हम में है, काम वाटून दिले, प्रत्येक ऑर्गनला काम वाटून देणे त्याला म्हणायचं डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे या फिर सीनियर या जूनियर केजी में जहां भी थे दोस्तों, तो आपको पता होगा वहां पे क्या था, एक ही मैडम थी, वो सब आपको मैथ, इंग्लिश और जो भी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज और सभी सिखाती थी, एक ही मैम, यस और नो, एक ही मैम, यस और नो बोलो। एग्रीगेट्स म्हणजे एकत्र येणे, एग्रीगेट्स म्हणजे एकत्र येणे, आपको याद है उस मैम का नाम, याद है आपको जो आपके पहले मैम थे उनका, या फिर पहले सर थे, नाम याद है उनका, जो जूनियर केजी या फिर सीनियर केजी में आपको सभी पढ़ाते थे, जिन्होंने आपको इस लाइफ में, ये जो स्कूल का लाइफ है, उस पहले आपके मैडम और सर का बहुत अच्छी बात है, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये याद है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे भी याद है मेरे सर का नाम रत्न पारकी सर थे, ओके, तेजनकर सर थे मुझे पढ़ाने वाले, एक कुलकर्णी सर थे, एक शेख सर थे जिन्होंने मुझे स्कूल लेवल पे पढ़ाया। हमारे यहाँ पे वो सीनियर केजी जूनियर केजी कुछ नहीं था, डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड था, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक ही मैडम आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाती थी। तो इज देयर डिवीजन ऑफ लेबर, वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर है क्या, आंसर इज नो, वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर है क्या, नहीं। जब आप स्कूल में आए, अभी आप 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में थे, सपोज आपका सबसे अच्छा स्कूल है औरंगाबाद में मान लो, तो यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर अलग, इंग्लिश वाले टीचर अलग, मराठी वाले या सेकंड लैंग्वेज वाले अलग, जो भी है साइंस वाले अलग, मैथ वाले अलग, इवन दो ज्योमेट्री वाले अलग, और अलग अलग है दोस्तों, ठीक है, अलजेब्रा वाले अलग। नाउ यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेवल नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। क्या शब्द है, डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इन योर स्कूल, इवन दो टीचिंग का डिपार्टमेंट अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग देखते हैं, प्रिंसिपल ज्यादा पढ़ाते नहीं है, ओके, प्यून अपने काम करते हैं, ओके, टीचर अपने काम करते हैं, क्लास टीचर अपना काम करता है, या जो प्रिंसिपल है वो उनका काम करते हैं, तो सब जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो उनका काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। सो जितना ज्यादा एनिमल सेल और ये होंगे उतना डिवीजन ऑफ लेबर, बट इनमें कुछ ही सेल है, सो डिवीजन ऑफ लेबर इज, देयर इज अ मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर। और दोस्तों एग्जांपल क्या है, मैंने बोला था पहले से ही, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट ओनली पोरीफेरा म्हणजे स्पंज, पोरीफेरा या फिर पोरीफेरा का दूसरा कॉमन नेम क्या है, स्पंज, स्पंजेस, इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। समझे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते दोस्तों, जो दूसरा लेवल है दैट इज नंबर 1 हो गया,
नंबर 1 जो दूसरा लेवल है दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ बात करेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे बात करेंगे नंबर 1 दोस्तों, व्हाट इज मीन बाय टिश्यू? Okay, the group of cell is called as a tissue. Group of cell having common function is called as a tissue. So दोस्तों, many cells having common function are organized to form tissue. Many cells having common function, having common functions, function are grouped together. They are grouped together to form tissue. First time इनमें टिश्यू आया दोस्तों, to form tissue. ये पहले एनिमल है जिनमें टिश्यू आया। कौन है वो? एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? उनका एग्जाम्पल है सिलेंटेरेटा, MCQ, सिलेंटेरेटा एंड टिनोफेरा। इनमें एक सिमिलरिटी है, वैसे तो बहुत सारे, पर एक है कि दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनमें फर्स्ट टाइम टिश्यू बने दोस्तों। तो इनमें याद रखो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर एब्सेंट। इनमें कोई भी ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो है दोस्तों, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर एब्सेंट, दोनों नहीं है इसमें। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर एब्सेंट। नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे दोस्तों, डिवीजन ऑफ लेबर माइल्ड से थोड़ा सा, मिनिमम से थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा। मॉडरेट डिवीजन ऑफ लेबर होगा। मॉडरेट मीन्स थोड़ा सा ज्यादा। मॉडरेट डिवीजन ऑफ लेबर, मॉडरेट डिवीजन ऑफ लेबर, थोड़ा सा काम और ज्यादा बटा हुआ रहेगा। ये होगा दोस्तों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉडरेट समझते हैं ना, मिनिमम मीन्स बहुत कम, मॉडरेट मीन्स थोड़ा सा मिडल। यस, क्लियर है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है या नहीं? आगे बढ़ते हैं। नाउ बात करते हैं दोस्तों, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 पे आएगा, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप ऐसा बड़ा मत लिखो, मैं जस्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा लिखो, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस में होगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले मैंने मैच द कॉलम 1 वाला विद कॉलम 2 वाला जो ये है वो बताया था आपको। ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, दैट इज प्रेजेंट इन, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थस में जो फ्लैट वर्म। किस में होगा ये होगा दोस्तों प्लैटीहेल्मिन्थस। हेल्मिन्थस मींस फ्लैट वर्म। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, टिश्यू परफॉर्मिंग द कॉमन फंक्शंस, ओके, दे आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ ऑर्गन, टू फॉर्म एन ऑर्गन। यहाँ पे क्या है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, tissues performing a common function, they are organized. Suppose these are the tissue, my fingers are tissue, these are also tissue, and tissue performing the common function, they are organized to form दोस्तों organ. तो इससे कहते हैं organ level of organization. Tissues performing or doing, ये थोड़ा सा इवोल्यूशन होता गया और टिश्यू परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। तो इनमें दोस्तों कॉमन फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इनटू organized to form organ। तो ये दोस्तों ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट ऑर्गन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। नंबर 2, दैट इज each organ perform specific physiological function, जैसे कि स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे हमारा हम में है दोस्तों हार्ट पंपिंग ऑफ ब्लड, किडनी एक्सक्रीशन, लंग्स रेस्पिरेशन, वैसा फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ईच ऑर्गन परफॉर्म स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। डिवीजन ऑफ लेबर इज हाई डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ओके, नंबर 3 पॉइंट, ओके, मैक्सिमम डिवीजन ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ लेबर इज वेल डेवलप्ड। डिवीजन ऑफ लेबर इज वेल डेवलप्ड। डिवीजन ऑफ लेबर इज डेवलप्ड। क्यों वेल डेवलप्ड म्हणू शकतो? वेल डेवलप्ड, अच्छा डिवीजन, अच्छा खासा डिवीजन ऑफ लेबर है। हर एक ऑर्गन ने अपना अपना काम जो है दोस्तों वो अलग करके लिया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, याद रखो। नाउ इसका एग्जांपल है प्लैटीहेल्मिन्थस, और लास्ट पॉइंट है दैट इज
दैट इज दोस्तों, और वो है नंबर 4, और उसका नाम है दोस्तों दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा, जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है याच्यामध्ये काय जरा लक्ष द्या, इसके एग्जांपल है दोस्तों, इसका एग्जांपल है दैट इज एसके हेलमिंथिस ऑनवर्ड। याद रखो, ऑनवर्ड मींस इंक्लूडिंग एसके हेलमिंथिस, बाकी के सभी बचे हुए कौन कौन है वो, पीसीसी पामे हाईकोर्ट। तो एसके हेलमिंथिस के ऑनवर्ड क्या है, दैट इज एसके हेलमिंथिस ऑनवर्ड, एसके हेलमिंथिस एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सभी एसके हेलमिंथस ऑनवर्ड, सभी में कौन सा सिस्टम ऑर्गन लेवल ऑफ, कौन सा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा दोस्तों। जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि नंबर 1 पॉइंट दैट इज मेनी ऑर्गन्स हैविंग कॉमन फंक्शन, मेनी ऑर्गन्स हैविंग कॉमन फंक्शन, हैविंग कॉमन फंक्शन, common functions join together, common function join together to form organ system। क्या बनेगा, organ system, समझाता हूं, to form organ system and perform specific physiological function and perform specific physiological function। सेम जैसे कि मान लो दोस्तों एक ऑर्गन सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूं कि एक ऑर्गन सिस्टम है डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स मेनी ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स many organs which help in digestion, which help in the process of digestion and absorption, एक काम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आपको पता है कौन से ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन, जैसे दोस्तों माउथ है, बकल कैविटी है, माउथ और बकल कैविटी अलग अलग है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ये जो ओपनिंग है ये स्लिट लाइक ओपनिंग, इसे कहते हैं माउथ, और ये जो कैविटी इसे कहते हैं बकल कैविटी। माउथ है, बकल कैविटी है दोस्तों, फैरिंग्स है, इसके बाद इसोफेगस है। याद रखो, माउथ है, बकल कैविटी है, फैरिंग्स है, इसोफेगस है दोस्तों, इसोफेगस। ओके, फिर उसके बाद क्या है, इसोफेगस के बाद दोस्तों स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, साथ में ही लार्ज इंटेस्टाइन, साथ में ही दोस्तों, साथ में ही थोड़ा सा और क्या है, साथ में लीवर है, ओके, सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड ये ऑर्गन ही तो है, लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड है दोस्तों, पैनक्रियाज है, सभी मिला के क्या बनाते हैं, ऑल ऑफ देम, सभी, ये सभी ऑर्गन है, ये सभी मिला के क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सभी मिला के क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सभी मिला के क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये होता है दोस्तों एसके हेलमिंथिस ऑनवर्ड में, ये होगा एसके हेलमिंथिस ऑनवर्ड। ये क्लियर है, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, टाइम झालाय बस, हो दे, क्या प्रॉब्लम है, होने दो टाइम। नाउ प्लीज पे अटेंशन, सभी बात करेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड मध्ये नहीं है ये शिवानी। नाउ प्लीज पे अटेंशन, आपको क्या लगता है कितने ऑर्गन सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, कितने ऑर्गन सिस्टम है, लास्ट पॉइंट बोल दो, कितने ऑर्गन सिस्टम है, लास्ट स्लाइड। ओके, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम और टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स। आपको क्या लगता है क्या कौन से ऑर्गन सिस्टम है? ओके, मैं पाठवणार आहे तुम्हाला, 2 मिनिट। कौन से ऑर्गन सिस्टम है, बोलो कौन से ऑर्गन सिस्टम है, आपको क्या लगता है कौन से ऑर्गन सिस्टम है, बोलो।
11 ऑर्गन सिस्टम आहे. ए ऑर्गन सिस्टम. बरं, हाँ सांगा. बहुत बढ़िया अपूर्वा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. अपूर्वा कहती है कि रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, ओके, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम होगा. ये 4-5 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, 6. ओके, बहुत बढ़िया. लिम्फेटिक सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये हो गया. मी लिहून तर पाठवणारच आहे तुम्हाला, जरा लक्ष द्या. सो कहाँ गया वो डिफरेंट, लिहिले होतं ना मी, एनिमल सिस्टम. टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल. नंबर वन लक्षात ठेवा, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसका कुछ संबंध है. नंबर 2 दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम. नंबर 3 फिर दोस्तों दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आएगी एक्सक्रेटरी सिस्टम नंबर 4 पे, जिसमें किडनी एंड ऑल दैट. एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम. फिर नंबर 5 में आएंगे दोस्तों दैट इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम. नंबर 6 पे आएगी दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और एक भी आती है स्केलेटल सिस्टम या फिर लोकोमोटर सिस्टम, पर वो इतना ज्यादा हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ अभी ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट इन एस्केहेलमिंथिस ऑनवर्ड. ओके, कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम. तो ये जो सभी फाइलम है, सभी फाइलम फ्रॉम पोरीफेरा टू कॉर्डेटा, सभी में हर एक सिस्टम कैसी होती है ये हमें देखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. सभी एनिमल में, सभी एनिमल में ये बहुत, ये लिखा क्यों है, सभी एनिमल्स में ये डिफरेंट रिप्रोडक्टिव, ये डिफरेंट सिस्टम कैसे होते हैं, ये डिफरेंट सिस्टम, सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस डिफरेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये हमें देखना है. कैसे होता है ये हमें देखना है. होता है ये पूछते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, इसीलिए लिखा है. ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, इसीलिए लिखा है बस. क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, आर यू गेटिंग मी? रुकते हैं आज के लिए, बस इतना ही आज के लिए रुकते हैं दोस्तों. स्केलेटल, एंडोक्राइन, बाकी के भी है. सभी एनिमल में ये डिफरेंट सिस्टम किस में नहीं है तो ये भी पता होना चाहिए कि चलो यार डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें नहीं है, नर्वस सिस्टम इनमें नहीं है, ये भी पता होना चाहिए. ओके, डन. संडे का टॉपिक एनिमल किंगडम और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का मिक्स. जब जितना सैटरडे तक हो जाएगा उतना AK प्लस बी या सी बोलते हैं उसे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. ओके, चलो. चलो, समझे? तो रुकते हैं. समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? समझ में. फिजियोलॉजिकल फंक्शन म्हणजे सर्कुलेशन इज अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन. फिजियोलॉजी मीन्स इट इज स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग इन द बॉडी. फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. नो प्लीज पे अटेंशन. तो थोड़ा सा अपने पास टाइम है तो मैं थोड़ा रिवाइज कर लूं. वी आर डीलिंग विद एनिमल किंगडम, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल, ये मैंने रिवाइज कर दिया. All of them are eukaryote, means they have eukaryotic cell in which nucleus is surrounded by nuclear membrane, means well developed nucleus है. The membrane bound cell organelle like mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, lysosome are present. They are multicellular without any exception. Mode of nutrition, all the animal are heterotrophic. They have holozoic mode of nutrition. Intake of complex substances like polysaccharide, protein and lipid. They have internal digestion. उनमें digestion कैसा है? Internal है. तो cell wall absent होगी, large
एंड सेंट्रल वैक्यूल इन सेल, ये भी एब्सेंट है। दे हैव ओनली स्मॉल वैक्यूल्स, वो भी लोअर एनिमल में होंगे। प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। सेल वॉल, सेल हैव सेंट्रियोल व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन। ग्रोथ डेफिनेट होता है, ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी। फिर दोस्तों प्रेजेंस ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज वेरी क्विक। प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट पोरिफेरा, प्रेजेंस ऑफ लोकोमोशन एक्सेप्ट पोरिफेरा। Mode of reproduction, both asexual and sexual mode of reproduction is present. Okay, both asexual and sexual reproduction present होगा दोस्तों, दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होंगे। Now evolutionary relationship, they are most advanced and complex organism on planet Earth. तो फिर मैंने कहा लेवल ऑफ, ये 6 बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर लिखो भी कहीं तो भी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सीलम, सेगमेंटेशन, नोटोफॉर। फिर दोस्तों किसी ने कहा कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस इनटेक ऑफ डायरेक्ट बड़े बड़े मॉलिक्यूल खाना, यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड। फिर दोस्तों 5 नंबर पे हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 है। सेलुलर लेवल एग्जांपल पोरिफेरा, टिश्यू लेवल एग्जांपल सेलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल एग्जांपल प्लैटीहेलमिन्थस, ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केहेलमिन्थस ऑनवर्ड। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है ऑन प्लैनेट अर्थ। तो ऑन प्लैनेट अर्थ दोस्तों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके से है ऑन प्लैनेट अर्थ। ये है डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वो है दोस्तों मैक्रोमोलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म सेल, सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, organ combined to form organ system combined to form organism, many organism of same species known as a population, and population of different species called as a community, or many biotic community and some abiotic factor together to form those ecosystem. And the different ecosystem having natural boundaries called as a landscape, many landscape joined to form a large area having a specific vegetation, having a specific animals, and having a specific climatic zone, उन्हें कहते हैं biomes. And biosphere is the all area on planet Earth or around the planet Earth which where living organisms are present, which include atmosphere means air, which include hydrosphere means water, और which include lithosphere means soil. ये सभी बायोस्फीयर है। ओके, पृथ्वी और पृथ्वी के आजू बाजू का एरिया, ये सभी दोस्तों बायोस्फीयर है। आगे बढ़ते नंबर 6 पे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन पोरिफेरा मीन स्पॉन्जेस, only cells are present, tissue, organ and organ system are absent, cells are arranged loosely to so form loose aggregate of cell. Aggregate म्हणजे एकत्र येणे, aggregate means एकत्र येणे। इसका मतलब क्या एग्रीगेट का, इसका मतलब होता है दोस्तों एकत्र येणे, एखादी गोष्ट एकत्र येणे, जवळ जवळ येणे, एग्रीगेशन। एकत्र येणे म्हणजे जवळ जवळ येणे, चार अलग अलग आहेत, जवळ जवळ येणे, एकत्र येणे। So minimum division of labor is present. Tissue level of organization present in Coelenterata and Ctenophora. Many cells having common function are grouped together to form tissue. Organ and organ system are absent. Moderate division of labor is there. Number 7 पे बात करते हैं दोस्तों, that is organ level of organization is present in Platyhelminthes, only one group. Tissue performing common function organized to form organ. Each organ performs specific physiological function like circulation and excretion and respiration, all that. Division of labor is well developed. Organ system level of organization, this is an highest level of organization present in individual, वो होता है दोस्तों एस्केहेलमिन्थस onward. Many organs having common function joined together form organ system and perform specific physiological function. Example दिया है digestive system का, जिसमें many organ which help in digestion absorption like mouth है, buccal cavity, pharynx है, esophagus है, stomach है, small intestine है, large intestine. Actually मैंने एक MCQ भी कवर किया है, सीक्वेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लिवर, सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। और फिर दोस्तों अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हर एक एनिमल में ये डिफरेंट टाइप के सिस्टम के स्ट्रक्चर क्या है ये देखना है, या किसमें ये सिस्टम नहीं है ये भी देखना है। समझे आप? समझे? थँक यू सो मच। ऑफलाईन क्लासेस बद्दल क्वेश्चन विचारू नका, ते काही सुरू होणार नाहीत सध्या। प्रोडक्टिव्ह विचारा, त्याच्यावर डाऊट विचार बेटा, डाऊट। बायोम म्हणजे काय असतात, काय म्हणलात सर? वाव, शोधून काढा बायोम होतं का इकॉलॉजीला। बायोम म्हणजे असं सांगितलं की एक स्पेसिफिक क्लायमॅटिक झोन असतो त्याचा, जसं की डेझर्ट एक बायोम, त्याचं एक क्लायमॅटिक झोन आहे ना, तिथं टेम्परेचर हाय असतं, स्पेसिफिक व्हेजिटेशन असतं आणि स्पेसिफिक ॲनिमल असतात ठराविक। उद्या सांगतो वाटल्यास बायोम, वेळ नाही ना, चला लेक्चर आहे केमिस्ट्रीचं, बाय बाय। एके इज मोर इंटरेस्टिंग देन, अरे एके अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है।